Dr. Kamalpreet Singh and Pradeep Sharma ji, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you to both of you for coming here. Let's just set this session up. 70% of Chhattisgarh's population is dependent on agriculture. और इसमें से 80% किसान छोटे हैं या marginal हैं. तो आप इन छोटे, and I think we can start with Dr. Kamalpreet, आप इन छोटे और marginal farmers के पास कैसे पहुंचे ये कहते हुए कुछ अलग करते हैं when it comes to sustainable development कि आज कुछ तूफानी करते हैं, because what you were asking them essentially was, at least for the short duration of time, is a decrease in their production, right? How did you convince them? I would like to answer this, in a flow. जी. You just heard our Honorable Chief Minister say that agriculture has been of sustained focus for this government. I would say that, over the last 4 years, the consistent approach and regular review monitoring by the highest authority, it spurred our, whole department into action, and also with many innovative approaches, using information technology, using direct contact approach, using ground level institutions like cooperative societies, our field formation, using data of various departments and their functionaries, from the revenue to others, we have been able to reach out to the farmer. I will just give one figure that in 2018, while there was the registered farmers under our largest scheme, for the paddy procurement, it was around 16 lakhs or so. Now, for 2022-23 Kharif season, it was over 25 lakhs. So from around 16-17 lakh farmers to 25 lakh farmers over a short span of 4 years. I mean, it is way above national growth or any kind of growth in any other state. It is due to the single determined focus of our Chief Minister and his consistent guidance. So are you telling me that 20 lakh farmers in the state right now are exclusively involved in sustainable agriculture? Is that yes, what you're saying? 25 lakh farmers, they are registered with us, and we benefit them by using various schemes. The largest scheme is our, direct benefit transfer, the input subsidy scheme. And of course, then there are landless people also, landless laborers. They are covered under a separate scheme. More than 3 lakh people, they are covered under a separate scheme. Then the people who do not have the land or may have the land, but they rear cattle, they are covered under a separate scheme. So the whole gamut of universe is to say each and every segment of rural economy is covered. लेकिन शर्मा जी, किसान को कन्विंस भी तो करना पड़ेगा ना. सबसे पहले किसान को कन्विंस करना पड़ेगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, ग्रीन इकोनॉमी है, आगे जाके आपको बेनिफिट करेगी और आगे जाके आपके बच्चों को बेनिफिट करेगी. तो वो कन्विंस करने का जो सिलसिला है वो कहाँ से शुरू हुआ और क्या वो ख़त्म हो गया है या और कन्विंसिंग बाकी है? देखिए, किसान जो है छत्तीसगढ़ में कम से कम लगभग 80% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए, 70% तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं. और उनके पास उनकी स्मृतियों में यह गई नहीं है बात. दे स्टिल हैव देयर मेमोरी ऑफ डूइंग देयर परसिस्टेंट पर्माकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सो ऑन. तो सरकार ने क्या किया, जो जो सिस्टम में नीड गैप बढ़ते जा रहे थे उसको पूरा किया. जैसे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने वाले लोगों को ये पता नहीं था कि ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक इनपुट्स कहाँ से आए. सरकार ने गौठान में 30 लाख क्विंटल, इट्स अ ह्यूज अमाउंट, 30 लाख क्विंटल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करके दे दिया. और हर गांव में एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने का एक गौठान, एक फैक्ट्री है जहाँ महिलाएं बना रही है. तो उनको और कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं, इट्स राइट ओवर देयर. दूसरा, किसान जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सरकार खरीद रही है. तीसरा, जो छोटे किसान हैं वो 4 महीने 5 महीने किसान होते हैं, उसके बाद कारीगर हो जाते हैं, दे बिकेम आर्टिजन. सो एग्रेरियन, आर्टिजन एंड आर्टिस्ट
These are the 3 cycles of Chhattisgarhi citizen in the village. तो जो किसान है वही कारीगर में बदल जाता है, कारीगर जो है वही कलाकार में बदल जाता है, और इस तरह से ज़िंदगी चलती है। तो ये जो कारीगर है किसानी के बाद जो बचा हुआ है, उसके लिए सरकार ने गांव-गांव में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया है कि भाई आप बढ़ई हैं, आइए यहाँ पर, ज़्यादा अच्छी मशीनें यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं, बेहतर प्रोडक्शन करिए, और सरकार उसको खरीद रही है। सी मार्ट चालू किया गया। तो ये जो है 1 साल हुआ इस योजना को शुरू किए, 300 हर ब्लॉक में 2, 300 जगहों में शुरू हुआ है। 1 साल के अंदर 11,000 एंटरप्रेन्योर इनरोल्ड हुए हैं। और अब वो जो गांव-गांव में किसानी के साथ साथ जो कारीगरी होती थी, जैसे लोहारी के पास लेथ नहीं था, और बेचारा पीटते पीटते लोहा को थक गया था, अब लेथ दिए जा रहे हैं, महिलाओं को बहुत सारे बुनकरी की चीज़ें दी जा रही हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सरकार का एग्रीकल्चर, उसमें 2 हिस्से हैं, एग्रीकल्चर के बाद ऑफ फार्म और ऑन फार्म, ये दोनों चीज़ों में सरकार सपोर्ट कर रही है। सरकार ने जो गोधन न्याय योजना शुरू की है, उसका एक छोटा सा इंडिकेटर जो बहुत लोग बताते नहीं है, 4 साल में 5 लाख लीटर दूध का उत्पादन बढ़ा है। लोग कहते हैं 5 लाख क्विंटल 5 लाख लीटर हाँ, दूध लीटर, का लिया, दूध का प्रोडक्शन बढ़ा है बड़ा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। ये जो डेटा है ये बताता है कि डेयरी कितनी सस्टेनेबल हो गई है। छोटा किसान डेयरी करता है, 2 गाय, 3 गाय, 5 गाय। जब काऊ ड्राई हो जाती थी, उसको खिलाने का पैसा किसान के पास नहीं होता था। अब वो जो गोबर खरीद रहा है, एक गाय 10 किलो गोबर देती है डेयरी के अंदर, तो 20 रुपये उसको रोज़ सरकार दे रही है। उस 20 रुपये से उसका चारा आ जाता है। और नए गरीब किसान के लिए यदि 10 गाय पालता है तो 200 रुपये ड्राई काऊ को खिलाने के लिए नहीं होता था। और वो जो पैसा आ रहा है गोबर का, वो एक साइक्लिक इकोनॉमी में वापस फर्टिलाइज़र बन के किसान के खेत में ही जा रहा है। तो इस तरह से ये चीज़ें एक दूसरे को सपोर्ट में खड़ी हुई हैं। डॉक्टर कमलप्रीत, यू नो वी ऑफन टॉक अबाउट सक्सेस स्टोरीज। 4 साल हुए हैं छत्तीसगढ़ को एफर्ट है 4 साल पहले शुरू हुआ। एक जो सक्सेस स्टोरी जिसके बारे में बहुत बात हुई है, वो है दांतेवाड़ा की सक्सेस स्टोरी, राइट? जहाँ पे 110 के करीब गांव फुली ऑर्गेनिक है। दंतेवाड़ा एक फुल्ली ऑर्गेनिक डिस्ट्रिक्ट है, और नेचुरली हम वहाँ पे जितना भी फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह सप्लाई नहीं करते। और साथ ही साथ वहाँ के जो ट्राइबल्स हैं, उन्होंने एक एफपीओ के माध्यम से खुद को ऑर्गेनाइज किया है, और वो एफपीओ उनके जो प्रोडक्ट्स है, चाहे वो सेंटेड राइस हो, मिलेट्स हो, दूसरी और कई चीज़ें हैं वहाँ पे, उनके आर्टी क्राफ्ट्स हो, इसको पूरे इंडिया में वो सेल कर रहे हैं। और मुझे लगता है उनका टर्नओवर अब 2-2.5 करोड़ से ऊपर पहुँच गया है, वो जो पर्टिकुलर एफपीओ है वहाँ पे। तो ये एक सक्सेस स्टोरी है जो छत्तीसगढ़ में एक रीजन की है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। बेमेतरा में हमारे पास एक बहुत अच्छा, वहाँ पे भी एक ग्रुप है जिसने जो बनाना के फाइबर से वो सारा कुछ बनाते हैं, इंक्लूडिंग आप बैग बना सकते हो, कपड़े भी बना सकते हो, और रस्सियाँ बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। और उन्होंने रिसेंटली मुझे वो बता रहे थे, गुजरात में उनको 1 करोड़ का ऑर्डर मिला था जिसको वो अब फुलफिल कर रहे हैं। तो ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे जो ना सिर्फ कोर एग्रीकल्चर बल्कि उसके अलावा जो अलाइड सेक्टर में भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। एक पॉइंट मैं और बोलना चाहूँगा कि जो आपने बोला कि दोबारा आपने कन्विंस कैसे किया, एक इम्पॉर्टेंट स्टेप सरकार का जब गवर्नमेंट बनी तो एक लोन वेवर का एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया, जिसमें लगभग 10-1 करोड़ का लोन वेव किया गया। उस लोन वेवर की वजह से, ऋण माफ़ी की वजह से लगभग 2.5 लाख किसान जो खेती अनाप शनाप ब्याज पे लेके कर रहे थे, वो कोऑपरेटिव सिस्टम में आए, उन्होंने केसीसी लिया, बैंकों के सिस्टम में आए। और चूंकि यहाँ पे 0% ब्याज की स्कीम है, और अब हम उसको हॉर्टिकल्चर में भी 0% ब्याज पे कर रहे हैं, तो उन्होंने दोबारा जो खेती में अपना मेहनत की, दोबारा उनको एफर्ट किया, उसकी वजह से भी वो इस पूरे सिस्टम से जुड़े। तो आपने उनका कॉस्ट कम कर दिया, उनका खर्चा कम कर दिया,
उनको सही दाम दिलाने की व्यवस्था की। जब ये दोनों चीजें हो जाती है नेचुरली ये प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाता है। प्रदीप शर्मा जी, आपने बात की ट्रेडिशनल नॉलेज की, तो हम एक चीज़ बोलते हैं जो एक टर्म हम सब फेमिलियर हैं, हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल नॉलेज और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी। तो उसी तरह आप बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉलेज की और ट्रेडिशनल मेमोरी की। इस ट्रेडिशनल मेमोरी और नॉलेज को आपकी स्कीम्स के साथ जोड़ने में क्या महिलाएं, खासकर कि ट्राइबल महिलाओं का योगदान रहा है? बहुत ज़्यादा। देखिए हमारे यहाँ पर एक बहुत छोटा एग्जांपल बता रहा हूँ आपको कि नारायणपुर जो जगह है, नारायणपुर जगह जो जगह है वहाँ पर जो झाड़ू होता है, मतलब जो वहाँ की घास होती थी जिसका ब्रूम स्टिक झाड़ू बनता था, अब वो झाड़ू बनाती थी लेकिन कहाँ जाता, कौन बेचता, जितना हुआ हुआ। ये जो पूरा का पूरा जो सी मार्ट का चैन बना, तो आज ये होता है कि हर महीने 1 ट्रक झाड़ू दिल्ली जाता है। तो वो उनका नॉलेज है झाड़ू बनाने का, थोड़ा अमेंडमेंट कर दिया, हैंडल ठीक कर दिया, तो आज वो 1 ट्रक झाड़ू दिल्ली जा रहा है। तो ये नॉलेज जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको आपने एक मार्केटिंग लिंकेज से जोड़ दिया, वहाँ पहुँच गया। उसी तरह हमारे टेराकोटा के बर्तन बिक रहे हैं बहुत अच्छे, और बाकी जो रागी, कोदो, कुटकी, ये जो सब हो रहा है, इन सब का जो 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 पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है वो तो पहले ही उनके पास था ना। इसलिए हमारे पास आज जो है 75,000 एकड़ से 1,75,000 एकड़ में बदला। यदि वो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस नहीं होता तो इतना तेज़ी से, मतलब 300 टाइम्स ग्रोथ शायद नहीं होता। एक और आंकड़ा है जो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि छत्तीसगढ़ में द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज़ गॉन डाउन बाय 35%। सो दैट्स प्रीटी कमेंडेबल। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी डॉक्टर कमलप्रीत, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल क्या है? इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर स्केलेबल? आप 100 गांव में कर सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कर सकते हैं, क्या पूरे राज्य में कर सकते हैं? और छत्तीसगढ़ छोटा राज्य नहीं है, इट्स द 10th लार्जेस्ट स्टेट इन दिस कंट्री। देखिए, जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की जहाँ तक बात है, अभी हम लोग शुरुआत कर चुके हैं, बट इसमें 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो प्राइस ऑफ गुड्स। जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कोई भी कुछ उगाया जाता है तो उसको एक 3 ईयर का टाइम पीरियड लगता है। किसी भी एक पर्टिकुलर खेत को अगर हमको ऑर्गेनिक सर्टिफाई कराना है, ऑर्गेनिक यहाँ मैं बोल रहा हूँ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, और उसके बाद उसकी वैल्यू हाई मिलती है जब वो सर्टिफाई कराता है, बट उसका प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म में डाउन जाता है। तो जहाँ तक मेजर फूड क्रॉप्स की बात है, मुझे आज के दिन ये मैं नहीं कह सकता कि हम सडनली ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में जा सकते हैं। हमारे पास श्रीलंका का एक एग्जाम्पल है, उन्होंने ट्राई किया, जिस भी रीज़न से किया होगा, तो ये सडनली नहीं होगा। ये बाजार से जुड़ी हुई चीज़ है, मार्केट लेड ये रहेगा। जब खरीदने वाले लोग बढ़ते जाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ते जाएगा, अल्टीमेटली हो सकता है हम लोग कुछ सालों बाद इसमें स्विच कर पाएं। सडन स्विच नहीं होगा। फेयर पॉइंट, इट हैज़ टू बी लिंक्ड टू द लार्जर मार्केट, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। और आजकल बड़ी चर्चा है मिलेट्स की, पुश सेंटर से भी है, पुश स्टेट से भी है, पुश फौज में भी है। एक्चुअली इवन द आर्मी हैज़ इंट्रोड्यूस मिलेट्स इन इट्स डाइट। हम सबको पता है हेल्दी है, मिलेट खाना हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है गेहूँ खाने से या चावल खाने से, लेकिन आदत जिस चीज़ की पड़ी है उसी को हम लोग खाते हैं। मिलेट्स का जहाँ तक सवाल है प्रदीप जी, छत्तीसगढ़ में सप्लाई की प्रॉब्लम नहीं है, डिमांड की प्रॉब्लम है, उसका क्या हो रहा है? देखिए मिलेट्स में पहले साल भी अभी सीएम साहब बता रहे थे कि 50,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा पहले साल उत्पादन हुआ, मतलब खरीदा गया। दूसरे साल वो घट के 35,000 मीट्रिक टन हो गया। तो पूछा हम लोगों ने मीटिंग में ऐसा कैसे हो गया, तो पता चला कि बाहर के लोग आके इतनी मात्रा में ले जा रहे हैं कि सरकार को जो पिछले साल खरीदा था उतना इस साल नहीं मिला। इसका मतलब मार्केटिंग लिंकेजेस जो है उनने अपने इनरोड्स बना लिए हैं। तो मार्केटिंग मिलेट्स की आज वो सुपर फूड के रूप में बहुत चर्चित हो गया है, वो आजकल कोई चिंता नहीं रह गई है। केवल आपको अच्छा पैकेज्ड और वेल प्रोसेस्ड मटेरियल देना है, क्योंकि शहर का आदमी जो खाना चाहता है वो उसको प्रोसेसिंग नहीं कर सकता। मिलेट रिक्वायर्स प्राइमरी प्रोसेसिंग बिफोर ईट्स। Is that a challenge right now?
No, we have already started one of the biggest, plants in Kondagaon and many other places in Bastar and other places. तो मुझे लगता है कि हमारे पास इतना बड़ा प्लांट आज है कि हम जो हमारी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त है. बट अभी मिलेट्स जो है नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है. तो आई थिंक वी नीड टू हैव मोर प्लांट्स लाइक दैट. डॉक्टर कमलप्रीत, वी डोंट हैव टू मच टाइम. मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि छत्तीसगढ़ की अगर टोपोग्राफी देखी जाए तो अलग है, राइट? हिल्स हैं, तराई है, प्लेन्स हैं और प्लेटू भी है. तो जब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज स्पेशली एग्रीकल्चर को फॉर्मुलेट करता है तो हर एरिया और टोपोग्राफी के हिसाब से करता है. वहाँ पे क्या चैलेंजेस रहते हैं आप लोगों के? देखिए, दो किस्म के चैलेंजेस हैं. एक तो हमारे पास, जैसे आपने बताया, ट्राइबल एरिया भी है. तो इट इज़ नॉट जस्ट द पॉपुलेशन जो कि डिफरेंट है, बल्कि वहाँ पे थोड़ा सा हिली एरिया भी है. और प्लेन एरिया में पैडी हमारा मेन क्रॉप है. लेकिन हम लोग ट्राइबल एरियाज़ के लिए हॉर्टिकल्चर इंक्लूडिंग टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड. मोर देन 100 एकड़ ऑफ टी हमने, जशपुर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सूटेबल टोपोग्राफी है, वहाँ पे हमने लगाया. और बस्तर में हमने कॉफ़ी लगाया है ऑलमोस्ट 80 एकड़ में. और उसका एक एक्चुअली उसकी इशू ये है कि आज के दिन प्रोडक्शन बहुत कम है तो मिलती नहीं है कॉफ़ी, बट प्लांटेशंस अभी उसके हो गए हैं. तो आई होप आगे और कॉफ़ी है. अरे यस, वाह, वन ऑफ द बेस्ट कॉफी. वर्ल्ड्स बेस्ट कॉफी. अच्छा, कुर्ग वाले परेशान हो जाएंगे हाँ. आपकी तो बात सुन के. टोपोग्राफी के हिसाब से क्रॉप्स हमने आइडेंटिफाई किए. और रायपुर के आसपास मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे आपको ड्रैगन फ्रूट भी मिल जाएगा, आपको चेरीज बहुत किस्म के मिल जाएंगे, स्ट्रॉबेरीज उगाने लग गए हैं लोग, किसान आज. तो इसको देखते हुए नई स्कीम जो हम लोग लास्ट सीजन लाए हैं वो ये है कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में भी हम विदाउट इंटरेस्ट किसानों को लोन दे रहे हैं, सो दैट उनका जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो कम हो जाए, उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिले. और ना केवल धान का, हमारा जो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा बोलते हैं, केवल धान नहीं बल्कि बाकी फसलें, मिलेट्स, हॉर्टिकल्चर, कॉफ़ी, टी, इसका भी बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करें. थैंक यू. Dr. Kamalpreet, thank you very much for joining us. Pradeep ji, thank you very much for joining Thank us. you. This has been an instructive discussion. Thank you so much.